Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 9 नवंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक कैंपेन की, जो कि है जल दिवाली। जल दिवाली, वीमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वीमेन कैंपेन। यह भी लॉन्च किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा? ये बेसिकली कैंपेन लॉन्च किया गया था ताकि वीमेन एम्पावरमेंट हो सके एक तो, और दूसरा वीमेन को यहाँ पे एम्पावर किया जा सके बाय टॉकिंग देम एंड बाय टेलिंग देम अबाउट द वेरियस प्रोसेसेस, जो कि आपकी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस हो गई, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हो गई, सेफ ड्रिंकिंग वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है आपके प्लांट्स में, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर उनको अवेयर कराने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये जल दिवाली ये फर्स्ट फेज था आपका वाटर फॉर वीमेन, वीमेन फॉर वाटर कैंपेन का, जो कि 7 से लेके 9 नवंबर के बीच में हुआ था। करेक्ट। एंड यहीं पे याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एंड ये आपका कैंपेन अमृत स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया था, और अमृत क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की ही ये फ्लैगशिप स्कीम रहेगी। ठीक है, तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वाटर को सेफ बनाने के लिए, कैसे सेफ होता है, कैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर घर में आता है, कैसे वो ट्रीट किया जाता है, उस सब के ऊपर यहाँ पे वीमेंस को अवेयर कराने का काम किया गया। फिर यहीं पे याद रखेंगे ओडिशा अर्बन अकेडमी, ये नॉलेज पार्टनर थी ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंपेन, जो कि है जल दिवाली वीमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वीमेन कैंपेन की। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉर्पोरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स? तो थीम क्या रहेगी? पहली, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉर्पोरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स। तो क्या थीम रहेगी? वो है इट टेक्स अ नेटवर्क टू फाइट अ नेटवर्क। ये आपकी कॉन्फ्रेंस 30 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक हुई। ठीक। एंड इस कॉन्फ्रेंस को कहाँ पे कराया गया था? न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेट किसके द्वारा कराई गई? निर्मला सीतारमन मैम के द्वारा इसको इनॉग्रेट कराई गई। एंड इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? ऑर्गेनाइज कराया गया था डीआरआई के द्वारा। डीआरआई क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनके द्वारा इसको कराया गया। अगर डीआरआई के मैं डायरेक्टर जनरल की बात करूं, मोहन कुमार सिंह, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। ठीक है, इट टेक्स अ नेटवर्क टू फाइट अ नेटवर्क, ये आपकी थीम रहेगी पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉर्पोरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स की। करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉर्पोरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स न्यू दिल्ली में हुई, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हुई। एंड द कॉन्फ्रेंस वाज इनॉग्रेटेड बाय निर्मला सीतारमन। ये जो कॉन्फ्रेंस है होस्ट की गई, ऑर्गेनाइज की गई किसके द्वारा? डीआरआई के द्वारा, डायरेक्टरेट
ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, विच फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय EPFO, एंड इसी फाउंडेशन डे के सेलिब्रेशन के द्वारा भविष्य निधि अवार्ड्स, आई रिपीट भविष्य निधि अवार्ड्स, ये भी यहाँ पे रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। करेक्ट। एंड जो ये इवेंट था कौन से फाउंडेशन डे का, 71st फाउंडेशन डे का ऑफ EPFO, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, लोकेशन क्या रहेगी, भारत मंडपम, जो कि न्यू दिल्ली में रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे भविष्य निधि अवार्ड्स इसी 71st फाउंडेशन डे के दौरान EPFO के, जो कि है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, भारत मंडपम पे ये इवेंट हुआ। इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था, किसके द्वारा, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसको वर्चुअली इनॉग्रेट करा गया था। EPFO की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन रहेंगी, मिस नीलम शामी राव, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। और कब इस्टेब्लिश किया गया EPFO को, 1952 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EPFO 71st फाउंडेशन डे था इसका, EPFO का भारत मंडपम पे सेलिब्रेट किया गया और यहीं पे भविष्य निधि अवार्ड से सम्मानित किया गया लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं, किस कंट्री ने होस्ट किया वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023। अब देखो AI सेफ्टी समिट क्या दर्शाता है यहाँ पर, कि हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया था और ये एरा स्टार्ट हुआ है जब OpenAI ने ChatGPT को लॉन्च किया था। राइट, इससे हमने देखा कि AI में काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ आ गई है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। इवन आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक एक्ट्रेस की फेक वीडियो लॉन्च कर दी गई थी इंटरनेट पर, एंड ये दर्शाया जा रहा है कि जो डीप फेक वीडियोस होती हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रह सकती हैं। इवन अमिताभ बच्चन ने यहाँ पे अपना कंसर्न सामने लाए थे इसके लिए। इवन हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जिस रेट से ये ग्रो कर रहा है ना, जिस रेट से यहाँ पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, वो 4 to 5 टाइम्स है। मतलब अगर हम देखें साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, तो जो AI में डेवलपमेंट हो जाती थी ना, हो रही है, और जो पहले नॉर्मल डेवलपमेंट होती थी वो बहुत ज़्यादा है AI में एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलपमेंट्स या किसी और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, क्योंकि सब कुछ डाटा का खेल है, ऑनलाइन होता है सब डाटा। और AI को जब आप ऑनलाइन डाटा प्रोवाइड कराते हैं तो वो अपने आप इतना ट्रेंड होता है वो, कि वो किसी भी चीज़ को हम क्रैक भी कर सकते हैं, हैक भी कर सकते हैं ईजिली। इवन आपको पता होगा जो ChatGPT था, पहले आपका सितंबर 2021 तक का वहाँ पे इंटरनेट का डाटा था उसके पास, लेकिन अभी उसको अपडेट करके अप्रैल 2023 तक कर दिया गया है। राइट, तो और AI इतना ज़्यादा डेंजरस है कि सारी कंट्रीज़ के नेशन, सभी लोग जो पावरफुल लोग हैं वो इस पर एक चेक रखने की बात कर रहे हैं। और इसीलिए ये समिट हुई थी, वर्ल्ड की पहली फर्स्ट AI सेफ्टी समिट। और इसी सेफ्टी समिट के दौरान पूछा गया कि हुई कहाँ पर, UK में हुई। और इसी सेफ्टी समिट के दौरान एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था, उस डिक्लेरेशन का नाम क्या है, तो वो है ब्लेटस्ली डिक्लेरेशन। करेक्ट, ये ब्लेटस्ली डिक्लेरेशन जो है, याद रखेंगे, पहली AI समिट या फिर AI के ऊपर ये डिक्लेरेशन साइन किया गया था। एंड यहीं पर लॉन्च करने की बात की गई वर्ल्ड का पहला AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो वर्ल्ड का फर्स्ट AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट और ब्लेटस्ली डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन किया। और इस ब्लेटस्ली डिक्लेरेशन को कितने नेशंस के द्वारा साइन किया गया था, 28 नेशंस के द्वारा इसको साइन किया गया था। करेक्ट, ताकि जो AI का जो मिसयूज़ हो सकता है हमें वो नहीं करना है, हमें तरीके से रहना है। एंड जो भी हार्मफुल टेक्नोलॉजीज हम जनरेट कर सकते हैं AI की मदद से, उस पर चेक लगाने की बात की गई। यहीं पे हम देखेंगे जो 28 कंट्रीज, उसमें इंडिया जाता है, USA, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने साइन किया वर्ल्ड का पहला एग्रीमेंट नोन एज द ब्लेटस्ली डिक्लेरेशन, जो कि AI सेफ्टी समिट 2023 UK में जो हुई थी उसके दौरान साइन किया गया था, जहाँ पे कंट्रीज ने प्लेज किया टू कोऑपरेट एंड टू प्रमोट सेफ यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनके द्वारा मिलकर अभी एक नया स्टैम्प कलेक्शन लॉन्च किया गया है। एंड ये स्टैम्प कलेक्शन लॉन्च किया गया था मैडम मैरी क्यूरी को सम्मानित देने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए, उनके 120th बर्थ एनिवर्सरी पर, जो कि 7 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। मैडम क्यूरी कौन थी, काफ़ी फेमस ये आपकी साइंटिस्ट रह चुकी हैं। इन्होंने रेडियम एंड एक और रेडियम के साथ याद रखेंगे वो था आपका पोलोनियम, इन 2 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। ये दोनों एलिमेंट्स आपके रेडियो एक्टिव थे, जिसकी वजह से इनको फ्यूचर में कैंसर हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। बट
इस रेडियो एक्टिव इनके डिस्कवरी से हमें जो न्यूक्लियर एनर्जी है, हम रेडियो एक्टिविटी का पता लगा, रेडियो एक्टिव से हम देखते हैं आजकल कितनी एनर्जी हम जनरेट कर पाते हैं। करेक्ट। एटम बॉम्ब्स आपके इसी प्रिंसिपल्स पर बने हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सम्मान दिया जाता है। और ये पहली व्यक्ति बनी है हिस्ट्री में जिनको 2 नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में। फिजिक्स में इनको सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से 1903 में, एंड केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया था केमिस्ट्री में इनको 1911 में। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? मैडम क्यूरी का जो जन्म हुआ था वो था आपका 1867, 7 नवंबर 1867, राइट। तो मैडम क्यूरी की बर्थ एनिवर्सरी पर ही उनको ऑनर करने के लिए नया स्टैम्प कलेक्शन लाया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया? यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इसके अलावा कई और लोगों को यहाँ पे इनके स्टैम्प से सम्मानित किया गया, जैसे कॉफी आनंद, महात्मा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा एंड सो ऑन। नेक्स्ट बात करते हैं कनाडा HSBC। इन्होंने लॉन्च किया एक गेन लाइफ इंश्योरेंस प्लान फॉर कस्टमर्स ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। आई रिपीट, कनाडा HSBC ने गेन नाम से एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है जो कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा उनके कस्टमर्स को प्रोवाइड कराया जाएगा बैंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, ये ऑफर करता है आपको एक रेगुलर इनकम, करेक्ट। एंड ये जो पॉलिसी है ये अवेलेबल रहेगी इन ऑल 629 ब्रांचेस ऑफ विकास ग्रामीण कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक बैंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, तो गेन नाम से लॉन्च किया किन्होंने? कनाडा HSBC ने। एंड ये कैनरा बैंक एंड HSBC के द्वारा यहाँ पे ये इंश्योरेंस कंपनी को स्पॉन्सर किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर इंडसइंड बैंक। इन्होंने लॉन्च किया एक प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड विद UPI इंटीग्रेशन। आई रिपीट, इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड विद UPI इंटीग्रेशन, राइट। और यहीं पे याद रखेंगे तो इंडसइंड बैंक ये अलाउ करेगा अपने कस्टमर्स को टू इनिशिएट UPI पेमेंट्स बाय सिंपली लिंकिंग देयर क्रेडिट कार्ड्स विद UPI enabled applications, and with this integration of the card on UPI, individuals can make transactions seamlessly on both online and offline platforms and earn accelerated rewards on UPI transaction, राइट। डायरेक्टली याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट पर आ जाते हैं फिर। नेक्स्ट है इंडिया के SEA ने एंड ब्राज़ील के ABIOVE, इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि सोयाबीन ऑयल को सप्लाई किया जा सके टू इंडिया। आई रिपीट, इंडिया के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन जो SEA है, इन्होंने एक MOU साइन किया ब्राज़ील की ABIOV के साथ, जो कि ब्राज़ीलियन एसोसिएशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ है। इनका ये जो MOU साइन था ये किस लिए था? ताकि सोयाबीन ऑयल को सप्लाई किया जा सके टू इंडिया। यहीं पर हम देखेंगे सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन मील, सोयाबीन के सप्लाई के लिए, ट्रेड के लिए, यूज़ के लिए, एज वेल एज ऑयल सीड्स प्रोडक्ट्स को इंडिया में सप्लाई करने की यहाँ पे बात की गई। ये जो MOU है ये टारगेट करेगा टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के लिए फॉर इम्प्रूव्ड ऑयल सीड कल्टीवेशन, एम्फेसाइजिंग एम्प्लीफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। बेसिकली क्या है कि टेक्नोलॉजी एक्सचेंज भी करें एंड बेसिकली इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सप्लाई करने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अर्थ शॉट प्राइज पर। ये 2023 का अर्थ शॉट प्राइज है। 5 इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे सम्मानित किया जाता है अर्थ शॉट प्राइज से। ये अवार्ड दिया जाता है जो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार 2 चीज़ याद रखेंगे, 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक है S4S टेक्नोलॉजीज, इनको अर्थशॉट प्राइज से सम्मानित किया गया इन बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड कैटेगरी के अंडर, और भूमित्रा को यहाँ पे फिक्स आर क्लाइमेट कैटेगरी के अंडर अर्थशॉट प्राइज से सम्मानित किया गया। ये जो विनर की लिस्ट थी प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम्स के द्वारा यहाँ पे रिलीज की गई एट ए सेरेमनी हेल्ड इन सिंगापुर। तो याद रखेंगे इंडियन सोलर पावर टेक वेंचर, साइंस फॉर सोसाइटी टेक्नो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, S4S टेक्नोलॉजीज एंड भूमित्रा जो कि एक ग्लोबल सॉइल कार्बन मार्केट प्लेस है, इंडियन अमेरिकन के द्वारा फाउंड की गई है। इन दोनों को यहाँ पर सम्मानित किया गया था अभी अर्थशॉट प्राइज से। S4S टेक्नोलॉजी को बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड कैटेगरी के लिए और भूमित्रा को फिक्स आर क्लाइमेट कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं CFDA। CFDA क्या होता है? काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका फैशन आइकन अवार्ड 2023 से अभी किनको सम्मानित किया गया? वो है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स एक टेनिस प्लेयर है, राइट। ये रिटायरमेंट ले चुकी हैं, करेक्ट। एंड ये वो पहली एथलीट बनी है, फर्स्ट एथलीट जिनको सम्मानित किया गया है CFDA अवार्ड से, काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका फैशन आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये वो पहली
एथलीट बनी। और याद रखेंगे इनको ये अवार्ड किम कार्दाशियन से सम्मानित किया गया था, जिनको 2022 में CFD अवार्ड से सम्मानित करा गया था। ठीक, जैसे आपके ऑस्कर्स होते हैं तो फैशन इंडस्ट्री का जो ऑस्कर अवार्ड माना जाता है वो CFD अवार्ड ही माना जाता है। एंड इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम वीमेन सिंगल टाइटल जीते हैं एंड 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल भी सेरेना विलियम्स जीत चुकी हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। हीरालाल समारिया, इनको अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है ऑफ CIC एंड ये वो पहले दलित IAS ऑफिसर बने जिनको यहाँ पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है ऑफ CIC, जो कि है हीरालाल समारिया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट की जो ओथ थी वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर की गई, वो थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा एडमिनिस्टर की गई ओथ फॉर द ऑफिस ऑफ दिस CIC, और राष्ट्रपति भवन में हुआ था। ये सक्सीड किनको करेंगे, ये सक्सीड करेंगे यशवर्धन कुमार सिन्हा को टू बी द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ CIC। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट याद रखेंगे गोवर्धन S रावत एंड अजय कुमार सूद, इन दोनों को यहाँ पर अभी डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है नाबार्ड का। आई रिपीट, नाबार्ड के जो डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है, गोवर्धन S रावत एंड अजय कुमार सूद। गोवर्धन S रावत जी ये 5 साल के लिए अपॉइंट किए गएंगे। वहीं पर अगर अजय कुमार सूद की बात करें तो ये 31 अगस्त 2027 तक इस पोजीशन में रहेंगे। चेयरमैन कौन है नाबार्ड का, साजी KV एंड हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र एंड 1982 में नाबार्ड को इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट है संजय कलापुर एंड R नारायण स्वामी, इनको अपॉइंट किया गया पार्ट टाइम मेंबर्स एट NFRA। NFRA क्या है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो किनको अभी अपॉइंट किया गया एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का, वो भी 3 साल के लिए, वो है संजय कलापुर एंड R नारायण स्वामी को। ठीक, और अब NFRA के पास कितने पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, 9 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं टोटल। संजय कलापुर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे थे ऑफ IDBI। 2018 से 2021 इन्होंने सर्व किया एज एन इंटरनेशनल काउंसिल मेंबर एट लार्ज फॉर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में बात करेंगे हम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो ये 16वां एडिशन था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। किसके द्वारा जीता गया, पंजाब की टीम के द्वारा जीता गया। पंजाब की टीम ने किसको फाइनल्स में हराया, पंजाब की टीम्स ने बड़ौदा को फाइनल्स की टीम में हराया टू विन दिस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 16वां एडिशन। और याद रखेंगे यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक ये आपके क्या रहेंगे, ये आपके स्पॉन्सर हैं इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के, करेक्ट। इसका जो फाइनल्स हुआ था मोहाली पंजाब में हुआ। अगर बात की जाए यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच तो कौन रहेंगे, अनमोल प्रीत सिंह यहाँ पर जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, ये आपके प्लेयर ऑफ द मैच रहेंगे। और अभिषेक शर्मा यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज रहेंगे इन दिस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। चलिए, और याद रखेंगे ये 16वां एडिशन था और यहाँ पे पंजाब की टीम जो विनर रही 80 लाख रुपए इनकी टीम को यहाँ पर एज अ प्राइज मनी दिया जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी पे। 8 नवंबर को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी या फिर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, करेक्ट। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रेडियोलॉजिस्ट का टूवर्ड पेशेंट्स केयर एंड उसको इम्प्रूव करने के लिए, उससे जो भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपका डाटा मिलता है, करेक्ट, एंड डॉक्टर्स को उसको पढ़ने में मदद आती है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है ये, राइट। इसीलिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 8 नवंबर को, करेक्ट। पहली बार कब ऑब्जर्व किया, सॉरी ये कौन सा डे था और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, तो ये 12वां एडिशन था, याद रखेंगे। और पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2012 में। तो दोस्तों ये तो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कोई एक वन लाइनर रिवीजन पर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया जल दिवाली वीमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वीमेन कैंपेन। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट की पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉर्पोरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स इन न्यू दिल्ली। 71st फाउंडेशन डे ऑफ EPFO भविष्य निधि अवार्ड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट किए गए। देन UK गवर्नमेंट ने होस्ट किया वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023। UN एंड IAEA इन्होंने कोलैबोरेट किया ऑन न्यू कलेक्शन टू ऑनर मैरी क्यूरी एंड ये वो पहली व्यक्ति हैं हिस्ट्री में जिनको 2 नोबेल प्राइज से, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स में सम्मानित किया गया।
कैनेरा HSBC ने लॉन्च किया गेन लाइफ इंश्योरेंस प्लान फॉर कस्टमर्स ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। इंडसइंड बैंक इन्होंने लॉन्च किया प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड विद यूपीआई इंटीग्रेशन। इंडिया का SEA एंड ब्राज़ील का ABIOV इनके बीच में MOU साइन हुआ फॉर द सप्लाई ऑफ सोयाबीन ऑयल टू इंडिया एंड इसकी टेक्नोलॉजी के लिए। देन अर्थशॉट प्राइज की बात करें तो पांच इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे इंडियन अमेरिकन फर्म एंड इंडो अमेरिकन लीड बाय फर्म अमंग 5 इंडियन विनर्स है। करेक्ट। सेरेना विलियम्स की बात करें, ये वो पहली एथलीट बन गई जिन्होंने CFDA फैशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हीरालाल समारिया इनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया ऑफ CIC का बाय एंड जो इसकी ओथ थी वो एडमिनिस्टर की गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा। गोवर्धन S रावत एंड अजय के सूदिन को अपॉइंट किया गया एज डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ नाबार्ड। सेंटर ने अपॉइंट किया संजय कालापुर को एंड नारायण स्वामी को एज पार्ट टाइम मेंबर्स ऑफ NFRA फॉर 3 ईयर्स एंड अब टोटल 9 पार्ट टाइम मेंबर्स हो गए हैं NFRA के। देन पंजाब ने डिफीट किया बड़ौदा को टू विन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि 16वां एडिशन था एंड फाइनल एडिशन कहाँ पर हुआ था इसका, मोहाली पंजाब में। देन इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी 8 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर, या फिर नॉट जस्ट वन लाइनर, पुराने करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। सबसे पहला है PM मोदी इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023। IMC का कौन सा एडिशन अभी इनॉग्रेट किया गया था, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये 7th एडिशन था आपका IMC का, जो कहाँ पर हुआ था, लोकेशन आ जाए तो ये हुआ था भारत मंडपम, जो कि कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक, 27 से लेके 29 अक्टूबर के बीच में हुआ था। एंड याद रखेंगे ये जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस है ना, ये एशियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फोरम रहेगा। ठीक है, कहाँ हुआ था, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में 27 से 29 अक्टूबर तक। फिर यहीं पे आपको इसकी थीम याद रखनी है, थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। आई रिपीट, थीम ऑफ IMC 2023 क्या रहेगी, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ये जो कांग्रेस था IMC, इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया, वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 अक्टूबर को। एंड इसका एम क्या था कि इंडिया की जो पोजीशन है एज अ डेवलपर, एज अ मैन्युफैक्चरर एंड एन एक्सपोर्टर, इसको बढ़ावा देना विद की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। करेक्ट। यहीं पे याद रखेंगे 100 5G यूज केसेस लैब्स को यहाँ पर अवार्ड किया गया। देन यहीं पे जियो स्पेस फाइबर, इसको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। करेक्ट, ड्यूरिंग दिस IMC 2023 एट भारत मंडपम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे IMC 2023, इसने शोकेस किया इंडिया की एडवांसमेंट इन टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन विद अ स्पेशल फोकस ऑन 5G टेक्नोलॉजी एंड 6G अलॉन्ग विद AI। देन यहीं पे हम देखेंगे दिस इवेंट सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स, जैसे CEOs हो गए, एग्जीबिटर्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, एंड इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर यहीं पे याद रखेंगे IMC 2023 इन्होंने एक एस्पायर इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक स्टार्टअप प्रोग्राम है, जो बिटवीन द स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स के बीच में कनेक्शंस प्रोवाइड कराएगा, ताकि जो स्टार्टअप्स को किसी चीज़ की डिमांड आ जाती है, जैसे मान लो फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो वो इन्वेस्टर्स ही पूरा करेंगे। इसके लिए ये एस्पायर को भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इन्होंने अनवेल किया क्रेस्ट ऑफ विच इंडियन नेवल शिप। तो INS सूरत का यहाँ पे क्रेस्ट को भी इनॉग्रेट किया गया था। करेक्ट, INS सूरत, ये जो INS सूरत है ये प्रोजेक्ट 15B के अंडर आ जाता है। राइट, एंड यहीं पे याद रखेंगे एडमिरल R हरि कुमार जी के द्वारा ये अनवेल किया गया था। फिर ये जो क्रेस्ट है ये क्या शो करता है, यहाँ पर ये फीचर्स आर लाइट हाउस एट हजारिया सूरज, जो कि लोकेटेड एट द सदर्न एंट्रेंस ऑफ द गल्फ ऑफ खंबात रहेगा। जो ये लाइट हाउस ऑफ हजारिया है ये 1836 में बिल्ड किया गया था एंड इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट लाइट हाउसेज इन इंडिया। फिर आ जाता है एशियाटिक लाइन एंड VVC, इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। एशियाटिक लाइन की बात करें तो ये स्टेट एनिमल रहेगा गुजरात का, जो कि सिंबलाइज करता है शिप की मैजेस्टी एंड स्ट्रेंथ को, वेयरएज VVC ये डिपिक्ट करता है इंडियन नेवीज का कमिटमेंट टू मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड नेशनल डिफेंस। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलिए, और जो ये आपका INS सूरत रहेगा, याद रखेंगे ये कब कमीशन किया जाएगा, तो 2024 में इसको कमीशन किया जाएगा, तब तक ये रेडी हो जाएगा, इसमें जो भी अपडेट होना है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नासा के द्वारा अभी एक मिशन की बात की गई जिसका नाम है इन्फ्यूज़ मिशन। इन्फ्यूज़ मिशन ये क्या काम करेगा, ये स्टडी करेगा आपको आपका साइनस लूप को।
करेक्ट। ये एक सुपरनोवा इवेंट है जो कि 20,000 लाइट ईयर दूर हो चुका है, दैट इज 20,000 साल पहले हुआ था, एंड ये आपका कुछ 2600 लाइट ईयर्स अवे है। करेक्ट। इसको स्टडी करने के लिए यहाँ पर एक नया रॉकेट लॉन्च किया गया है, नया साउंडिंग रॉकेट, जिसका नाम रहेगा ब्लैक ब्रेंट 9। करेक्ट। ये रॉकेट का नाम रहेगा 2 स्टेज रॉकेट है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया इन्फ्यूज मिशन के लिए, जो कि है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। ये आपका न्यू मैक्सिको यूएसए से लॉन्च किया जाएगा। एंड क्या स्टडी करने के लिए? साइनस लूप, जो कि एक 20,000 साल पुराना सुपरनोवा है, जो कि 2600 लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम अर्थ। करेक्ट। और इसको वेल नुबेला के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट। जब एक स्टार बर्स्ट हो जाता है, जो उसकी गैसेस फिर रेमिनेंट्स रह जाती हैं, ऐसे इनको स्टडी करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया। ठीक है। और ये जो ब्लैक ब्रेंट 9 2 स्टेज रॉकेट रहेगा, ये 600 किलोमीटर की हाइट तक जा सकता है, एंड इट कैन कैरी अ पेलोड ऑफ अप टू 400 to 1200 पाउंड्स। ठीक है। ब्लैक ब्रेंट रॉकेट का नाम रहेगा ब्लैक ब्रेंट 9, एंड नासा का है ये, एंड इन्फ्यूज मिशन के लिए। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। विजित गुजराती ने अभी 5 ग्रैंड स्विस टाइटल को जीत लिया है। आई रिपीट, 5 ग्रैंड स्विस टाइटल को किन्होंने जीता? वो भी 3rd एडिशन ऑफ द 5 ग्रैंड स्विस टाइटल जीता है विदित गुजराती ने। करेक्ट। ये इवेंट आपका 23 अक्टूबर को हुआ था, 23 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। एंड इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये तो क्या 3rd एडिशन, लेकिन अगर मैं बात करूं 2nd एडिशन ऑफ 5 वीमेंस ग्रैंड स्विस टाइटल किन्होंने जीता? वो है इंटरनेशनल मास्टर वैशाली रामेश बाबू। इन्होंने आपका वीमेन टाइटल जीत लिया है, एंड मैन टाइटल जीता है विदित गुजराती ने। नेक्स्ट आ जाते हैं। इंडिया ने अभी वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीत लिया है। कहाँ पर हुई थी? रांची, झारखंड में इसका फाइनल एडिशन देखने को मिला था। ये 7वां एडिशन है ऑफ वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, जो कि अभी रांची, झारखंड में हुई 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में। एंड यहाँ पे इंडियंस वीमेन हॉकी टीम ने, याद रखिए, जीत लिया है वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी बाय डिफीटिंग जापान बाय 4-0 इन द फाइनल्स। और फाइनल हुआ था रांची, झारखंड में। फिर यहाँ पे याद रखेंगे, इंडिया टॉप पर रहेगा मेडल टैली में, या फिर इन दिस पोजीशन इंडिया को गोल्ड, जापान को सिल्वर, और चाइना को यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर F1 रेसिंग में मैक्स वर्स्टैपन, जो कि रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, इन्होंने F1 साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ये इनकी 17वीं विन है आउट ऑफ 20 इवेंट रेसेस इन 2023 का सीजन, और इन 17 विन के साथ इन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, जो कि पहले था 16 विन्स का इन अ पर्टिकुलर सीजन, और अब 17 विन्स इन्होंने कर लिया इन अ पर्टिकुलर सीजन। मतलब 20 रेस हुई थी पूरे साल में, 17 मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हैं, जो कि रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। एंड F1 साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स इनकी लेटेस्ट विक्ट्री रहेगी। सेकंड पोजीशन पे लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के ड्राइवर, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं, एंड एस्टन मार्टिन के ड्राइवर फर्नांडो अलोंसो, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, इन द 3rd पोजीशन। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। पिंक रिबन इसका सिंबल रहेगा, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नेक्स्ट बात करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा अभी इंडिया का पहला AI सॉल्यूशन लॉन्च किया है फॉर एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग। नेम इट, उसका नाम बताओ, क्या रहेगा इंडिया के पहले AI सॉल्यूशन का फॉर एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग? तो वो है कृषि 24/7, राइट। ये आपका नाम रहेगा इंडिया के पहले AI सॉल्यूशन का फॉर एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग। करेक्ट। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अलॉन्ग विद वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर AI। प्लस यहाँ पे याद रखेंगे, इनको सपोर्ट कहाँ से मिला? google.org से। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अलॉन्ग विद वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड google.org, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर कृषि 24/7 को यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। ये आपके एग्रीकल्चर को मॉनिटर करेगा, आपके आसपास जो वेदर इवेंट्स हो रहे हैं उसको मॉनिटर करेगा, और उससे रिलेटेड जो भी अपडेट हो रहे हैं या फिर जो भी अभी अप टू डेट घटनाएं हो रही हैं उनको यहाँ पे बताएगा। करेक्ट। आर्टिकल्स को स्कैन करेगा जो आपके अलग अलग लैंग्वेजेस में होंगे, और समरी प्रोवाइड कराएगा यहाँ पे। ठीक है, ताकि एक फर्म डिसीजन लिया जा सके। नेक्स्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कृषि 24/7, ये है आपके AI का नाम। नेक्स्ट आ जाते हैं। किस एयर कमांड ने ऑफ इंडियन एयरफोर्स अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई, जिसका नाम रहेगा पूर्वी आकाश, टू चेक इट्स कॉम्पैक्ट प्रिपेयर्डनेस?
तो चेक इट्स कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस। कौन सी कमांड रहेगी? वो है ईस्टर्न एयर कमांड, राइट। इन्होंने ये ईस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स की है, इन्होंने ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के साथ मिलकर भी एक्सरसाइज कंडक्ट करी है अभी, पूर्वी आकाश, करेक्ट, पूर्वी आकाश। और ये एक्सरसाइज हुई कहाँ थी? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई टू कॉम्बैट देयर प्रिपेयर्डनेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक्सरसाइज कहाँ हुई? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हुई। डे एंड नाइट एक्सरसाइज रहेगी, जहाँ पर हम देखेंगे ये एक्सरसाइज को जॉइंट ऑपरेशंस भी हुए ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के साथ। फिर यहीं पे LCH तेजस का भी यूज किया गया इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट ये रिलीज की जाती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। UNEP रिलीज करता है आपका अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को, करेक्ट। एंड ये जो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है ये सिंबलाइज कर रही है यहाँ पर कि जो हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो वर्क कर रहे हैं ना उसमें काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। जो हम प्रोसेसेस को, जो हम मतलब डील सेट करते हैं या फिर जो हम एम लेके चलते हैं, हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमें फंडिंग का भी गैप देखने को मिल रहा है, हमें इम्प्लीमेंटेशन का भी गैप देखने को मिल रहा है, राइट। प्लानिंग का भी हमें गैप देखने को मिल रहा है। तो हमें इसको पूरा करना पड़ेगा ताकि हमारे जो गोल्स हैं, जो हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्योंकि हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज एक सीरियस सिचुएशन बनता जा रहा है, तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए हमें प्लानिंग, फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन पे स्पेसिफिकली ध्यान देना पड़ेगा, राइट। और जो क्लाइमेट एडेप्शन के जो एफर्ट्स थे वो हमें कहीं ना कहीं ग्लोबली कम होते दिख रहे हैं, स्लो डाउन दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। दूसरा, किस कंट्री ने होस्ट किया 2-day समिट ऑफ यूरोपियन स्पेस मिनिस्टर्स डब्ड एज स्पेस समिट। तीसरा, व्हेन वाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए आप सभी की तरफ से। एंड जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैं सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आंसर्स। बहुत सारे बच्चे हैं वीडियो आते हैं देखते हैं चले जाते हैं, लेकिन अगर आप होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फिर देने का फ़ायदा क्या हुआ। आप इसको नीचे देखिए, समझिए ये चीज़ क्या है, ये किस लिए आपको दी जा रही हैं, क्या क्या इसमें कंटेंट है। उस पर्टिकुलर, जैसे भी ये स्कीम आ गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, क्यों लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, क्या इसका मोटिव या एम रहेगा, तो वो सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट कीजिए, पढ़िए उसके बारे में, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.